Hello, students, and welcome back to the science class. I know it's been a very long time that I have uploaded any video, so starting again, we'll just start from the same session where we left. Okay, so here are some chemical properties of nonmetals. Well, metals react with different elements in a variety of equations. We are having a lot of chemical properties of metals, but talking about non-metals, we are not having that much chemical properties. Non-metals doesn't react with every element. Non-metals are generally reacting with a small elements. We are having just limited cases of non-metals. So let's study them. First comes the reaction of nonmetals with oxygen. Generally, nonmetals do not react with air at room temperature except for the white phosphorus, which burns with oxygen at ordinary temperature and forms its oxide. And it is therefore stored in water. Now, what is this white phosphorus? It is actually an allotrope of phosphorus. Like we are having the allotropes of carbon in the form of graphite and diamond, similarly we are having some allotropes of phosphorus as well. These are three in number: red phosphorus, white phosphorus, and black phosphorus. Among these three, the white phosphorus is one allotrope which burns with oxygen at ordinary temperature and forms its oxide, and therefore it is stored in water. Talking about the examples, we are having two examples: carbon and sulfur. Carbon and sulfur, when ignited with water, react with oxygen and air to form their oxides, and the solutions of which in water are acidic. First is the case of reaction of sulfur with oxygen, and second is the case of reaction of carbon with oxygen. When sulfur is burnt in air, it forms sulfur dioxide, and similar is the case with carbon. When carbon is burnt in air, it forms carbon dioxide. Now the solution of sulfur dioxide, that turns blue litmus paper red. So that is acidic in nature. Here it is written wrongly. Generally, sulfur dioxide is not that acidic, but its solution is acidic in water. That means its solution is acidic. When dissolved in water, that is acidic. Sulfur dioxide forms sulfurous acid when dissolved in water. It doesn't form sulfuric acid, it forms sulfurous acid. So sulfurous acid is acidic in nature. Second is the case of carbon. When carbon is burnt in air, it forms carbon dioxide. We can also observe that when coal is a form of carbon, right? When coal is burnt, it forms smoke, which contains carbon dioxide. Although carbon dioxide is not that acidic, but the solution of the carbon dioxide in water, that turns blue litmus paper red. So that is acidic in nature. So we can say that solutions of these non-metals are acidic in nature. Okay, then comes the reaction of non-metals with water. Generally, non-metals do not react with water. Oxygen that dissolves in water to some extent, and this property of solubility of oxygen in water is responsible for sustenance of plant and animal life underwater. All the aquatic plants and animals, they utilize this oxygen that is dissolved in water for their respiration. जनरली पानी में नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते. यही प्रॉपर्टी है उनकी सॉल्युबिलिटी की, दैट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. हमें पता है ऑक्सीजन पानी में कुछ हद तक डिजॉल्व होता है. तो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी हैं जो अंडर वाटर रहते हैं, जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, यही ऑक्सीजन जो पानी में डिजॉल्व होता है उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन. हम ह्यूमंस बाहर रहते हैं तो हम ह्यूमंस बाहर की ऑक्सीजन इनहेल करके अपना रेस्पिरेशन करते हैं. बट द एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, व्हाट दे डू, they utilize the dissolved oxygen in water for their respiration. Similar is the case of chlorine, that also dissolves in water and forms acidic solution. Okay, then comes the reaction of non-metals with dilute acid. Non-metals की तरह हमने metals का भी डिस्कस किया था ना, वो dilute acid के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. So talking about non-metals,
they do not react with dilute acid. So we are not having that much chemical properties of non-metals. Generally वो ज़्यादा चीज़ों से react नहीं करते हैं. But metals, they react with a variety of elements. Okay. Then comes the uses of metals and non-metals. थोड़े से यूजेस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. बाकी हम लोग अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपके बुक्स में बहुत सारे यूजेस दिए हुए हैं. टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स. मेटल्स में क्या आते हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, यही होते हैं ना मेटल्स में. सो आयरन दैट इज यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, बिल्डिंग्स, कार, मोटरसाइकिल, शिप्स, ब्रिज यूज होते हैं ना. सभी व्हीकल्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स में भी रॉड्स डलती हैं, मशीनरी में भी, हर जगह यूज होता है ना आयरन. देन टॉकिंग अबाउट कॉपर, इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड स्टैचू. देखा होगा आपने म्यूजियम्स वगैरह में भी बहुत सारे स्टैचूज होते हैं कॉपर के बने होते हैं. इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो कॉपर की बनी होती है जनरली. वाई? बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देन कमिंग टू एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की भी वायर्स बनती हैं. दीज आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स. ऑल्सो दिस इज यूज्ड इन मेकिंग किचन यूटेंसिल्स. देखा होगा आपने आपके किचन में मम्मा यूज़ करती है ना, बर्तन जितने यूज़ करती हैं उसमें से एल्यूमिनियम के बर्तन भी होते हैं. Then talking about gold and silver, these are quite precious metals, quite expensive. So these are used in making ornaments, jewelries बनाने में. So these are some uses of metals. Coming to the non-metals, we are having a number of non-metals, but in comparison to the metals, these are very low. So far, only 22 non-metals are discovered. So when talking about use of non-metals, we can talk about oxygen. We breathe oxygen, which is a non-metal. And without oxygen, no one can live. Talking about the sodium chloride, that is common salt. घर में होता है ना common salt जो हम रोज खाते हैं. That cannot be formed without chlorine. क्या होता है सोडियम क्लोराइड में? क्या होता है? सोडियम और क्लोरीन, Na and Cl. तो Cl क्या है? क्लोरीन. दैट इज अ नॉन मेटल. सो विदाउट क्लोरीन दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड. एंड वी यूज दैट कॉमन सॉल्ट every day to enhance the taste of our food. And without using that common salt, food is just tasteless. Then nitrogen, it is used in making fertilizers. फर्टिलाइजर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी क्रॉप्स के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो फर्टिलाइजर्स में मोस्टली नाइट्रोजन यूज होता है. टॉकिंग अबाउट कोल, which is a carbon, this is used as a fuel. So these are some uses of metals and non-metals. We can also discuss the uses of these metals and non-metals in detail. Let's study them from the book. Here comes the uses of metals. Look, here we are having a huge number of uses. A huge number of metals are here. We are having copper and aluminium, which are used to make wires for electrical communication. Then also alloys of metals are used. Alloys क्या होते हैं? जिसमें different metals को हम लोग utilize करते हैं. They are used in different ratios. Alloy is what? It is a metallic substance which is made by mixing two or more metals, or also we can use a metal and a non-metal to obtain desirable qualities, जैसे कि hardness, lightness, strength. For example, talking about stainless steel, जिसके बर्तन बनते हैं, utensils are made up of stainless steel. That is an alloy of iron, carbon, nickel and chromium. So इसमें क्या क्या यूज हुआ है? आयरन भी यूज हुआ है, कार्बन भी यूज हुआ है, निकल भी यूज हुआ है और क्रोमियम भी यूज हुआ है. Whereas ब्रास के भी बर्तन बनते हैं. That is an alloy of copper and zinc. उसमें क्या यूज हो रहा है? कॉपर और जिंक, दो ही चीजें हैं. Then talking about bronze. ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? कॉपर और टिन का. आपने देखा होगा स्पोर्ट्स डे में या फिर जनरली जो एथलीट्स वगैरह होते हैं,
इनको जो मेडल्स मिलते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और थर्ड मेडल कौन सा था? ब्रॉन्ज मेडल. सो दिस इज दैट ब्रॉन्ज which is an alloy of copper and tin. गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम नोबल मेटल्स हैं जो हाईली इनर्ट होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं. वंस पॉलिश्ड दे डू नॉट लूज देयर शाइन. वैसे भी ये मेटल्स हैं तो शाइन तो इनमें वैसी होती है, बट अगर हम इसे पॉलिश कर दें दे विल नॉट लूज देयर शाइन इजीली. दैट इज वाई दे आर यूज टू मेक ज्वेलरीज. Also we can use these metals alloying with other metals ताकि हम उन्हें certain properties दे सकें. So here a lot of uses of metals are written. You can refer the uses of metals from here. Okay. Then talking about the non-metals, we are having a lot of uses of the non-metals as well. We can have a look upon it. Oxygen. All the living beings, plants and animals, they use oxygen for their respiration, which is obviously a very continuous process. All the combustion processes, they need oxygen. जब भी हम लोग किसी चीज़ को लाइट अप करते हैं, फायर करते हैं, सो क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग ही नहीं जलेगी. ऑल्सो ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स. जितने भी फ्यूल्स हैं उन्हें बर्न करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. देन कमिंग टू द अदर वन, सल्फर, विच इज़ यूज इन मेनी मेडिसिन्स एज अ जर्मिसाइड. जर्म्स को किल करने के लिए मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्किन ऑइंटमेंट्स एज एन एंटीसेप्टिक. घर में देखा होगा आपने, कोई एंटीसेप्टिक होती है अगर कोई स्किन पे डिजीज़ होती है या फिर कोई भी जलन वगैरह होती है तो फिर हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं. उसमें सल्फर एक ऑइंटमेंट की तरह यूज़ किया होता है. Also, sulfur is used in the vulcanization of rubber. Now, what is this vulcanization? Here on the right side, it is given in a small box. The process of treating rubber with sulfur or sulfur compounds under heat and pressure to improve the elasticity and strength or to produce a hard substance, that is known as vulcanization. तो vulcanization में हम क्या कर रहे हैं? रबर जो होती है that is very elastic, but इतनी strong नहीं होती वो, तो उसको सल्फर या सल्फर के किसी कंपाउंड के साथ हम लोग क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं अंडर हीट एंड प्रेशर, ताकि उसकी इलास्टिसिटी और ज़्यादा इन्हांस हुए और उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, ताकि वो एक हार्ड सब्सटेंस बन जाए. सो दैट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. ऑल्सो इट इज़ यूज टू मेक मैच स्टिक्स, फायरवर्क्स एंड गन पाउडर. फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है. फॉस्फोरस, it is used in making phosphoric acid and superphosphate fertilizers. fertilizers में हमने क्या पढ़ा था? पीछे अभी पढ़ के आए थे ना हम, नाइट्रोजन यूज़ होता है. जनरली फर्टिलाइजर्स में NPK यूज़ होता है. N इज नाइट्रोजन, P इज फॉस्फोरस एंड K इज पोटाशियम. NPK फर्टिलाइजर्स होते हैं. सो फॉस्फोरस इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर. ऑल्सो अभी हमने ब्रॉन्ज के अलॉय के बारे में पढ़ा था. ब्रॉन्ज is an alloy which make use of phosphorus. corrosion से बचाने के लिए. corrosion क्या होता है? एयर के कॉन्टैक्ट में आके जो हमारा मेटल होता है वो डीके करना स्टार्ट कर जाता है. it gets eroded with the layer that is formed after the metal reacts with the oxygen. जब भी मेटल हमारा किसी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करता है, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है. उस लेयर के साथ में हमारा मेटल इरोड हो जाता है. सो टू रेजिस्ट दैट प्रोसेस, टू रेजिस्ट कोरोजन, फॉस्फोरस हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम एलॉय बनाएं. सर्टेन प्रॉपर्टीज ही तो देनी है हमें. Also, it is also used in preparation of matchsticks, fireworks and smoke screens. नाइट्रोजन का तो हमें पता ही है, फर्टिलाइजर्स में तो यूज़ हो ही रहा है. Also, it is inert in nature. So, liquid nitrogen that is used to preserve blood and other donated organs. Liquid nitrogen बहुत ठंडी होती है. Also, it is used in food packaging. क्यों? क्योंकि फूड जल्दी स्पॉइल नहीं होता.
हैबर्स प्रोसेस में भी यूज़ होती है। हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, जिससे हम अमोनिया बनाते हैं। और अमोनिया क्या करता है, दैट इज अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, अगेन इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर। Silicon is used to make silicon steel alloy and in the preparation of silicons. So these are some uses of non-metals. इससे भी ज़्यादा uses हैं, और भी uses दिए हुए हैं आपकी बुक्स में. Here are some other uses: carbon, chlorine, iodine and all the noble gases. थोड़ा देख लेते हैं, एक लुक ले लेते हैं इन पे भी. कार्बन दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, बताया था ना मैंने आपको फॉस्फोरस के टाइम पे. डायमंड और ग्रेफाइट उसके एलोट्रॉप्स हैं. डायमंड दैट इज अ जेमस्टोन, ज्वेलरीज में यूज होता है ना. ऑल्सो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच कैन बी यूज इन कटिंग ऑफ रॉक्स एंड ग्लासेस. ग्रेफाइट की अगर बात करें, दैट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल्स. इलेक्ट्रोड बनाने में उसको यूज करते हैं. पाउडर्ड ग्रेफाइट दैट कैन बी यूज एज अ ड्राई ल्यूब्रिकेंट. ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो हम लोग यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस. दो सर्फेसिस के बीच में अगर हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल अप्लाई दैट ल्यूब्रिकेंट बिटवीन दैट. ऑल्सो हम लोग पेंसिल्स जो यूज करते हैं उसकी लेड्स जो होती हैं वो किससे बनी होती हैं, ग्रेफाइट से बनी होती हैं. क्लोरीन, क्लोरीन तो बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है. दैट इज अ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट दैट कैन बी यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड पेपर ऑल्सो. इट इज यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, वाइटनिंग कॉज करता है. ऑल्सो इट इज यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ गैमैक्सिन, दैट इज अ पेस्टिसाइड टू किल द पेस्ट्स. क्रॉप प्लांट्स में हम लोग यूज करते हैं ना पेस्टिसाइड्स. जितने भी हमारी क्रॉप्स होती हैं, अगर उस पर कोई पेस्ट लग जाता है तो उसको हम लोग किल करते हैं बाय यूजिंग द पेस्टिसाइड्स. ऑल्सो इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर इन म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट्स एंड प्लांट्स, क्लीनलीनेस ऑफ वाटर के लिए. आयोडीन दैट इज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक. इट्स सोल्यूशन इन अल्कोहल. आयोडीन के सोल्यूशन को अगर हम लोग अल्कोहल के साथ ट्रीट करें विद सम पोटेशियम आयोडाइड KI, दैट कैन बी यूज्ड एज अ टिंक्चर ऑफ आयोडीन which when applied on cuts acts very good as an antiseptic. Its paste in petroleum jelly is also used to relieve pain. पेट्रोलियम जेली क्या होता है, हम लोग यूज़ करते हैं ना वैसलीन, वो पेट्रोलियम जेली होती है. अगर उसके साथ इसका पेस्ट यूज़ करें दैट कैन बी यूज टू रिलीव पेन. और टिंक्चर ऑफ आयोडीन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल. इट कैन बी अप्लाइड ऑन कट्स. अगर कोई चोट लग जाती है, कहीं पे कट होता है तो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो सके. ओके, देन लास्ट इज नोबल गैसेस. गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, xenon, radon, these are all non-reactive and are called noble or inert gases. इसमें जैसे हीलियम है, हीलियम इज यूज्ड इन बलून्स एज इट इज लाइटर देन एयर. एयर में क्या है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं, नाइट्रोजन भी है. बट हीलियम, हीलियम एज इट इज़ लाइटर, तो अगर हम बलून्स में उसे फिल करेंगे तो क्या होता है, हमारे बलून्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं एज इट इज़ हैविंग लाइटर एयर इनसाइड इट. Also, the deep sea divers use a helium oxygen mixture for respiration underwater. Underwater अगर जाते हैं वो तो यही mixture यूज़ करते हैं. नियॉन की बात करें, नियॉन इज यूज्ड इन स्पेशल इलेक्ट्रिकल ट्यूब्स कॉल्ड नियॉन साइन ट्यूब्स और नियॉन साइन बोर्ड्स. यहाँ पे लगा है ना एक नियॉन साइन बोर्ड लेफ्ट हैंड साइड पे with orange and red color. Signboards to show some sign. An argon that can be used as a filling in electric bulbs. It glows green when mixed with a small quantity of mercury. अगर mercury के साथ मिक्स कर दें तो ग्रीन कलर से ग्लो करती है. So these are some uses of non-metals. So with this, your chapter is over. So till the next session, stay safe, stay healthy, and goodbye.